केरला के दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम में मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने तिब्बी माहिरीन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुल्क में सेहत के शोबे में नुमायां पेशरफ्त हुई है और गुज़िश्ता 11 बरसों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में सेहत आम्मा के मैदान में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। इसी दौरान खाद की दस्तियाबी पर बात करते हुए उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मुल्क में खाद का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है, जिससे खरीफ सीज़न की ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं और रबी सीज़न के लिए भी मुकम्मल तैयारी है। The same way, if you talk about that, even in the adverse circumstances, PM Modi has seen to it that economy functions and goes well ahead. Even in this crisis, you see, the present crisis, Pakistan is in bad shape, Bangladesh is also in bad shape, Sri Lanka is in bad shape. But we, in spite of all these adverse and the crisis in Middle East, in the West Asia, you will find that here in India we have been able to see to it that common man is not hurt and he has been taken care. That is how. So, and in this crisis he has said that secure all possible sources of our supplies, protect the trade routes and prioritize the national resilience. So these are on these things we are working. I am the fertilizer minister. Of course, I know that we have got ample, we can take care of the Kharif season and we are ready for the Rabi season. But what we are doing, we are diversifying. We are going for the world market. We are trying to see to it that where from we can get, so that the common man, the common farmer is not in trouble. That is how we work. So this is called proactive government. कर्नाटक से खबर है, कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर रियासत के अहम आबी मंसूबों को रोकने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि अपर भद्रा नदी प्रोजेक्ट के लिए 5300 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था, लेकिन इख्तिदार की तब्दीली के बाद बीजेपी ने साल 2023 में इस मंसूबे को रोक रखा है। उनका कहना था कि 2026 में सूरत हाल मजीद खराब हो गई है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की टीडीपी बीजेपी मखलूत इख्तिदार वाली हुकूमत ने इस मंसूबे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुरजेवाला ने इल्जाम लगाया कि कर्नाटक में बीजेपी और जनता दल के लीडरान ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हालांकि ये मंसूबे दावनगिरी, चित्रादुर्गा, टुमकुरू और चिकमगलूर जैसे अजला के लिए इंतहाई अहम है। And a Rajya Sabha MP from Karnataka announced 5,300 crores. Then they lost power. BJP has blocked it since 2023. We are in 2026 now. On top of it, TDP BJP ruled Andhra Pradesh has challenged the Upper Bhadra River project in the Supreme Court, further putting a spanner in the execution of the project. All this while the BJP Janata Dal leaders maintain a conspiratorial silence. This project is crucial for whom? It's crucial for Davangere. This project is crucial for Chitradurga, Tumkur, Chikmagaluru. The second part is Union BJP government has deliberately stalled the Mahadai Kalsa Banduri project. We all know that Supreme Court approved the project. Karnataka Congress government consequently called and finalized the tenders for the project. But the Union BJP government has stalled the project by non-giving clearances for wildlife and forest. The Environment Minister of Government of India, Mr. Bhupender Yadav, gloats when he goes to other states and says, Government of India will never give clearance. Modi government and BJP will never give clearance to this project. He goes and makes open such statements. And BJP leaders of Karnataka, Janata Dal leaders of Karnataka have sealed their mouths with quick fix by saying
आंध्र प्रदेश में अमरावती दारुल हुकूमत मंसूबे पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर सुजला रामकृष्णा रेड्डी ने वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अमरावती में उन्होंने मीडिया से बात की। वाईसीपी लीडर ने इल्जाम किया कि रियासती हुकूमत एक ऐसे दारुल हुकूमत मंसूबे को जबरदस्ती आगे बढ़ा रही है जो माली तौर पर नाकाबिल अमल है और आवाम पर तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपये का बोझ डाल रहा है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से हुकूमत इस मामले को गैर ज़रूरी तौर पर कौमी सतह पर उछाल रही है और इसे कानूनी तरामीम के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। If you see, for the last 1 week, Chandrababu Naidu and his government, they have started enacting a farcical drama, and they took it to national level also, in the form of this amendment to the reorganization, AP reorganization bill, enabling, including this CRDA Act into it, for the purpose of making Amaravati as the capital. This one. Why I am saying it is a drama or it is a farce is, it is not a new one, it was there. If at all there is any sanctity, sanctity is there and it is continuing. If it is not there, all these years, what Chandrababu Naidu was doing, that question would arise. Second point is, Centre already, it has given an affidavit in the High Court itself, saying that they didn't have anything to do with the deciding, they didn't have any role in deciding a capital of a state. It is state's discretion. So that proves that he did it to divert public attention from his whatever deceptions he has been doing, and also he didn't keep up his promises. To divert from that also, he did all these things, and also to get a license and to satisfy and hoodwink the people here in the surrounding areas and farmers. आंध्र प्रदेश में खुसूसी रियासती दर्जे के मामले पर सियासी बयानबाजी में शिद्दत आ गई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर बोस्स सत्यनारायण ने वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाया। विशाखापट्टनम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा दिया जाता है तो रियासत अब तक तरक्की की राह पर आगे बढ़ चुकी होती, और उन्होंने सवाल उठाया कि मरकजी हुकूमत से खुसूसी दर्जे के लिए मौसर अंदाज में मुतालबा क्यों नहीं किया जा रहा है। बोस्स सत्यनारायण ने अमरावती दारुल हुकूमत मंसूबे पर भी सवालात उठाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों में वहां क्या तरक्की हुई है, इसकी वजाहत की जानी चाहिए। इन्होंने इल्जाम किया कि हुकूमत अमरावती मंसूबे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जबकि बुनियादी मसाइल नजरअंदाज किए जा रहे हैं। విద్యార్థులకు వచ్చే ఫీజు రింబర్స్మెంట్ రాక విద్యార్థులు ఉపాధి పనులు లేక సామాన్య ప్రజానికం గ్రామాల్లో ఉపాధి పనులు లేక ఈ ఇబ్బంది పడుతున్న నేపథ్యంలో సరే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయనకున్న పూర్తి పలుకుబడిని ఉపయోగించి అమరావతి వచ్చి కేంద్రంలో చట్టం చేశారని చెప్పని ఆ ప్రజల మధ్య పంపబెట్టడానికి ఇదేదో స్వాస్థ్యంగా కాంక్రీట్ వేసామనే ఫీలింగ్ ఇవ్వడానికి ఆయన చేసిన తాపత్రయాన్ని లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఆయన ఆలోచన ప్రజలతో పంచుకోవడానికి ఒక 200 కిలోమీటర్లు రాజధాని ప్రాంతం ఉంటే బాగున్న ఒక 170 కిలోమీటర్లు అని ఆయన వచ్చి మచిలీపట్నం నుంచి విజయవాడ మీదుగా అటు గుంటూరు వరకుంటే బాగుండదని ఆయన తాలూకా అభిప్రాయాన్ని ఆయన చెప్పడం। आज साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश मनाई जा रही है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने बाबू जगजीवन राम को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने कहा कि पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए काम करने वाले हीरो और हिंदुस्तान के साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश करता हूँ। इन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम एक समाजी मुसल्लह थे। उन्होंने एक तवील अरसे तक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर काम किया और कानून साज असम्बलियों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इन्होंने अपने आखिरी दम तक दलित बरादरी
बहादुरी की तरक्की के लिए काम किया। मैं इस अजीम इंसान को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ और ख्वाहिश करता हूँ कि आने वाली नस्लें उनकी तहरीक को आगे बढ़ाएं। मुल्क के साबिक नायब वजीर आला बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश तकरीब मेदक जिला मरकज के वेलकम बोर्ड के करीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह और दीगर ने बाबू जगजीवन राम की तस्वीर पर फूल पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस तकरीब में एडिशनल कलेक्टर नागेश, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीनिवास राव और दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद में खवातीन रिजर्वेशन बिल के मामले पर सियासी रद्दअमल सामने आ रहा है। तेलंगाना जागृति पार्टी के सरबराह के कविता ने मुजव्वजा बिल का खैर मकदम करते हुए इस पर चंद अहम खदशात जाहिर किए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इजलास में खवातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूर करने की तैयारी एक मुस्बत कदम है, ताहम इसमें ताखीर बाइस से तशवीश रही है। उनका कहना था कि अगर खवातीन रिजर्वेशन बिल को पहले नाफिज किया जाता तो खवातीन को गुज़िश्ता इंतखाबात में हिस्सा लेने का बेहतरीन मौका मिल सकता था। इन्होंने मुतालबा किया कि दीगर पसमानदा तबकात यानी कि ओबीसी खवातीन के लिए भी अलहदा कोटा यकीनी बनाया जाए। जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का अभी नया स्पेशल सत्र बुलाया गया है वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करने के लिए, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम नाराज़ भी है क्योंकि पिछले सत्र में जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था हमें लगा था कि वो पिछले इलेक्शन से ही लागू हो जाएगा, लेकिन उसको डिलिमिटेशन के साथ और जाति गणना के साथ जोड़ के लेट किया है। और अब कह रहे हैं कि हम फिर भी पिछला जो 2011 का सेंसस है उसी के थ्रू करेंगे। तो हमें तो लग रहा है कि महिलाओं का नुकसान हुआ है। एक इलेक्शन में वो भाग नहीं ले सके क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट में उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया था। चलिए देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। अभी कर्नाटक के जिले मांडिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के मुतादिद मामलात को हल कर लिया है। जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट शोभा रानी के मुताबिक पुलिस ने 50 से ज्यादा चोरी के केसेस को सुलझाते हुए 28 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपये मालियत का सोना, नकद रकम और मुख्तलिफ गाड़ियां बरामद की गई। इन्होंने बताया कि कामयाबी मांडिया पुलिस की मुनज़्ज़म तहकीकात और खुसूसी मुहिम का नतीजा है। ಬೈಕಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಸಹ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ 11 ಬೈಕ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಬೈಕು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಬೈಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ.